Hello students, in this video we will understand the concept of relations. So this concept is really important for us to solve exercise 2.2. So even though chapter का नाम ही relations and functions है, हमने 2.1 exercise में we built a basis to understand Cartesian product between two sets, क्योंकि Cartesian product will form as a basis or as a domain for us to define relations. तो relations, how relations are a subset of Cartesian products, so उसके लिए we needed to understand the Cartesian product first. So that's why relations is tackled in exercise 2.2. So we'll just directly dive into it. So I will take an example जो कि यहाँ पे already given है. So you are given a set which consists of alphabets A, B, C, and then you are given another set which consists of few names. ठीक है. So Bhanu, Binoy, Chandra and Divya. So these are the names which are given to you as part of the set Q. ठीक है. नाउ अगर हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 की बेसिस पे इस पे कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करें, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट हाउ इट विल बी डिफाइंड. फर्स्टली आई विल पेयर A with all 5 elements, then B with all 5 elements, and then C. So I'll just write a couple of starting elements. I'm not gonna write the complete Cartesian product here. ठीक है, बट ऐसे हम डिफाइन करेंगे. सो देयर विल बी इन टोटल ऑफ 15 एलिमेंट्स इन दिस सेट और इन दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, तो पांचों को हम उसके तीनों के साथ वी विल डिफाइन. ठीक है. सो अभी ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया. अब व्हाट इज़ रिलेशन. अब आप देखोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में देर आर ईच एंड एवरी एलिमेंट फ्रॉम P इज़ पेयर्ड विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ Q. तो इसमें कोई रिलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज सब एलिमेंट सबके साथ पेयर हो चुके हैं. सब सेट हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट हमारा बन गया है. बट रिलेशंस वो सेट्स होते हैं जो हम डिफाइन करते हैं बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स विच फुलफिल्स अ स्पेसिफिक कंडीशन. ठीक है. सो इन दिस केस व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव डिफाइंड अ रिलेशन R between elements of P and Q, X, Y, which is an ordered pair, where X is the first letter of name Y. ठीक है. and X belongs to P and Y belongs to Q. सो दिस इज़ द रिलेशन. अब आप देखो कि जो भी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया फॉर P एंड Q, उसमें से सब एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ एलिमेंट्स करेंगे और कुछ ऑर्डर्ड पेयर करेंगे. जैसे फर्स्ट एलिमेंट जो इस सेट का है A, अली. सो A इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम अली. सो दिस विल सेटिस्फाई दिस रिलेशन एंड विल पार्ट ऑफ दिस set. But A, Bhanu is not satisfying because Bhanu starts from B and we are pairing it with A. So this, even though this is part of the Cartesian product, but this won't be part of the set R. ठीक है. So set R में हमारे कौन कौन से elements हो जाएंगे उस हिसाब से. So if I pair A with all the elements in Q, but only one is satisfying the condition. Similarly, B will paired with all the elements in Cartesian product but will only satisfy when it is paired with Bhanu and Binoy. So there will be this element here, B से Bhanu and then B से Binoy. ठीक है. Then we have Chandra from C and nothing else because D is not part of P. ठीक है. सो हमने तीनों एलिमेंट्स के वो पेयर्स उठा लिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे. ठीक है. सो फ्रॉम हेयर वी गेट द रिलेटेड सेट बिटवीन P एंड Q. ठीक है. अब इससे हमें ये भी पता चलता है कि R में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑलरेडी थे, बट सब ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे. तो वी कैन से दैट R इज़ द सबसेट ऑफ P इंटू Q. वाई? बिकॉज R के सारे एलिमेंट्स आर देयर इन P इंटू Q. ठीक है. सो दिस इज़ द हाउ यू डिफाइन रिलेशंस. एंड टू शो इट विजुअली दिस इज़ नोन एज एन एरो डायग्राम विच इज़ गिवन हियर. दिस इज़ एन एरो डायग्राम. तो from here also you are showing that A is related to Ali, B is related to Bhanu and Binoy, C is related to Chandra and D is not related to anything because there is no element D in P. ठीक है. So this is the arrow diagram which you will need to only draw just for your understanding because this is not a feasible way to show relation between two sets when you have more than 10 elements. ठीक है, in each set. So this is that.
नाउ वी विल अंडरस्टैंड अ कपल ऑफ डेफिनेशंस. तो सबसे पहला डेफिनेशन क्या है जो हमने अभी डिफाइन किया, दैट a relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product, which we already understood that relation is a subset of the Cartesian product. This subset, that is the relation R, is derived by describing a relationship between first element and second element of ordered pairs. तो हमने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में एक रिलेशन डिस्क्राइब किया, और जो भी एलिमेंट्स उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे दैट वर पार्ट ऑफ द सेट आर. ठीक है. अब अ सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. सो इन दिस केस द एलिमेंट्स आर ऑफ द फॉर्म एक्स कॉमा वाई, सो वाई इज कॉल्ड द इमेज. ठीक है. अगर आपको कोई बोले कि फॉर एलिमेंट ए विच बिलोंग्स टू पी व्हाट इज़ द इमेज of element A if it is part of the set R, then you will say that image of A is Ali. So this is the image. ठीक है. So second element is known as image. Okay. Then we have second definition which says that the set of all first elements of ordered pairs in relation R form from the set A to B is called the domain. अब domain समझना बहुत ज़रूरी है, because domain defines what all elements, what all values can x take. ठीक है. अब x में सब वैल्यूज़ नहीं आ सकते हैं. आप x को d नहीं बोल सकते हो. क्यों? क्योंकि d इज़ नॉट पार्ट ऑफ p. ठीक है. इवन दो वी हैव अ कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज इन सेट q फॉर दिस, वी हैव दिव्या. अगर आप d डालोगे, अगर मान लो p में ऑलरेडी d होता तो यू वुड हैव रिसीव्ड द इमेज उसके लिए दिव्या, बट d इज़ नॉट पार्ट ऑफ p, तो डोमेन में d नहीं आ सकता है और डोमेन में वो एलिमेंट भी नहीं आ सकता है. फॉर एग्जांपल अगर मेरी P में लेट्स से P में देयर इज़ एन एलिमेंट E बट देयर इज़ नो इमेज ऑफ E. ठीक है. सो वी कांट से दैट डोमेन includes E also. So in this case the domain only includes A, B, C which has a corresponding image in Q. So there are two conditions for domain. पहला तो सारे एलिमेंट्स शुड बी पार्ट ऑफ योर फर्स्ट सेट जिससे आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो. सेकंड, ज़रूरी नहीं है कि उस सेट के सारे एलिमेंट्स विल बी पार्ट ऑफ द डोमेन, बट यू कांट जस्ट ऐड एनी एलिमेंट बिकॉज देर इज़ अ कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज एंड यू कांट ऐड दोज एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट विच डज नॉट हैव अ इमेज. ठीक है. सो इन दिस केस हम खुद से यहाँ पे डी नहीं ऐड कर सकते हैं इवन दो देर इज़ अ कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज प्रेजेंट. हम ई भी नहीं ऐड करेंगे अगर लेट्स से वो पहले से पी का पार्ट होता बिकॉज देयर इज़ नो कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज. सो यू ओनली नीड टू कंसिडर दोज एलिमेंट्स एज पार्ट ऑफ द डोमेन विच will give us an image and which are part of the set already. ठीक है. Now moving on to definition 4. So definition 4 states that all the set of all second elements is known as the range. तो अभी whatever corresponding image you get you will call that as range. So in this case हमारा domain था ABC और in this example हमारा range क्या हो जाएगा, अली, भानु, बिनोय एंड चंद्रा. दिव्या नहीं आएगा बिकॉज दिव्या के लिए हमारे पास डोमेन में ही कुछ नहीं था तो इमेज ही नहीं क्रिएट होगा. ठीक है. सो ऑल द एलिमेंट्स फॉर विच आर वैलिड इमेजेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट आर इन डोमेन इज़ नोन एज रेंज. ठीक है. देन वैसे अगर हम बोले तो पूरा सेट जो क्यू था जिसमें दिव्या भी थी उसको को डोमेन बोलेंगे. दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट यू शुड नो वट वी कॉल कि जहाँ से हम इमेजेस रेफ़र कर रहे हैं उस टोटल सेट को हम को डोमेन बोलते हैं बट ऑल द वैलिड इमेजेस को हम रेंज बोलते हैं. ठीक है. अब रेंज विल ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ को डोमेन. सो दिस इज़ कॉमन सेंस बिकॉज हम को डोमेन में से ही रेंजेस डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है. अभी रिलेशन को हम रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों में दिखा सकते हैं. तो ये जो हमने दिखाया दिस वाज द सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज़ द रोस्टर फॉर्म एंड विजुअल डायग्राम को एरो डायग्राम बोलते हैं. सो लेट्स डू एग्जाम्पल नंबर 7. सो एग्जाम्पल नंबर 7 में वी आर गिवन ए एज 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड आर हमें सेट गिवन है एक्स कॉमा वाई वेयर वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1. वी हैव टू शो द रिलेशन. सो अब इसमें आपको डोमेन और रेंज वाला जो है मेथड या फिर अब बोलो कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा. सी
आपको क्या करना है, इफ़ वी आर राइटिंग इट इन द सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर तो गिवन है, तो अगर हम मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ तो आई गेट अ कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू y विच इज़ 2. सो बोथ ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ a बिकॉज a से a का रिलेशन ही वी आर डिफाइनिंग. तो अगर मैं x की वैल्यू 2 लेती हूँ तो आई गेट वैल्यू ऑफ y एज 3. अगर मैं x की वैल्यू 3 लेती हूँ तो आई गेट वैल्यू ऑफ y एज 4. अगर मैं x की वैल्यू 4 लेती हूँ तो 5 आता है. अगर मैं 5 लेती हूँ तो 6 आता है. बट कैन आई टेक x की वैल्यू 6 इवन दो इट इज़ पार्ट ऑफ a? इफ़ आई टेक x की वैल्यू 6 देन यूजिंग दिस फंक्शन मेरा इमेज शुड बी 7. बट इमेज 7 हो ही नहीं सकता है बिकॉज मेरा जो कोड डोमेन है उसमें 7 है ही नहीं. ठीक है. सो दिस इज़ द ओनली वैलिड वैल्यूज. सो इन दिस केस मेरा डोमेन क्या है, इवन दिस इज पार्ट ऑफ सेकेंड ईयर. सो डोमेन क्या हो जाएगा मेरा 1 2 3 4 5. और मेरा रेंज क्या हो जाएगा, हर डोमेन के कॉरिस्पॉन्डिंग मेरा क्या वैल्यू है 2 3 4 5 एंड 6. 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है. तो डोमेन में 6 नहीं आया बिकॉज उसके कॉरिस्पॉन्डिंग कोई इमेज नहीं जनरेट हो रहा था. और रेंज में 7 नहीं आया बिकॉज अगर मैं 6 ले लूँ तो 7 इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ए विच इज़ द रिलेशन जो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं. ठीक है. डोमेन हमने डिफ़ाइन कर दिया, रेंज डिफ़ाइन कर दिया. कोडोमेन इज़ नथिंग बट द सेट इटसेल्फ जिसके ऊपर आप रिलेशन डिफ़ाइन कर रहे हो. सो कोडोमेन में तो सारे एलिमेंट्स रहेंगे. ठीक है. कोडोमेन इज़ सेट ए. ठीक है. अब हमको इसको एरो डायग्राम में दिखाना है. सो एरो डायग्राम मैं नहीं बना रही हूँ. यू कैन सी यहाँ पे जस्ट आपको ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए लिखा है, यहाँ पे भी ए लिखा है. यू जस्ट हैव टू बिल्ड एन एरो जो इसका रिलेशन डिफाइन करेगा. ठीक है. 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 एंड 5 से 6. ठीक है. मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल 8. सो एग्जाम्पल 8 में वी आर गिवन अ डायग्राम 2,2.6. सो इसमें हमको क्या है, रिलेशन डिफाइंड है. वी हैव टू राइट इट इन द सेट बिल्डर फॉर्म एंड इन रोस्टर फॉर्म एंड वी ऑल्सो शो डोमेन एंड रेंज. तो देखो पहले हम सेट एलिमेंट्स लिख लेते हैं. लेट मी राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म फर्स्ट. सो 9 is related to 3 and 9 is related to -3. 4 is related to 2 and 4 is related to -2 according to the arrow diagram, and 25 is related to 5 and 25 is related to -5 according to the arrow diagram. ठीक है. सो दिस इज़ द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द रिलेशन. अब मुझे अगर इस रोस्टर फॉर्म, अगर मुझे इसका सेट बिल्डर फॉर्म डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूँगी. आई विल से एक्स एंड वाई वेयर एक्स इज़ द स्क्वायर ऑफ वाई. ठीक है. x is the square of y. x belongs to p and y belongs to q. ठीक है. सो दिस वॉज फेयरली ईजी. हमने डिफ़ाइन कर दिया. इट्स क्लियर. ठीक है. अब रोस्टर फॉर्म भी दिखा दिया, सेट बिल्डर फॉर्म भी दिखा दिया. अब हमें दिखाना है डोमेन. सो डोमेन क्या होता है, ऑल द वैल्यूज़ दैट द फंक्शन कैन टेक. सो इन दिस केस 9 4 25 इज़ द डोमेन. रेंज क्या है, जो उसका वैलिड इमेज है, जो भी एरो जिससे लिंक कर रहा है दैट इज़ द रेंज. सो 5 3 2 -2 -3 एंड -5 इज़ द रेंज. ठीक है. कोडोमेन अगर पूछा होता तो सारे एलिमेंट्स आते, तो 1 भी इंक्लूड कर देते हम इसमें से. ठीक है. एग्जाम्पल 9 कर लेते हैं. सो इन दिस केस यू आर गिवन 2 सेट्स 1,2, b is 3,4. Then find the number of relations from A to B. Number of relations you have to define. So ये अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं था, बट इफ़ यू सी दिस ब्लू नोट, यहाँ पे आपको बताया तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट A to set B is the number of possible subsets of A into B. Possible subsets. So if number of elements in A is P, so in this case number of elements in A is 2 and number of elements in B is Q, so in our case it is 2 again. Then number of elements in Cartesian product we already know is 4. ठीक है. और we know that relation is always a subset of the Cartesian product. So the number of subsets or the total number of relations in our case will be, total number of relations will be 2 raised to the power 4, which will come out to be 16. Okay. So next videos will solve all these concepts and understand them better in exercise 2.2.